Hello students, so we are discussing question paper of AFM May 2024. So we will discuss the full solutions of each question. Let us start with question number 1. This is the first part. So this is related with valuation of equity with a constant growth model. So you can see data given is investor is holding 1000 shares of X Limited. Current year dividend is rupees 3 and market price of share is 35 rupees. Investor is concerned about several factors which are likely to change during the next financial year. For next financial year, dividend expected is given, risk-free rate, market risk premium, beta value, expected growth is given. So we have to advise the investor to take further action whether to buy, hold or sell the share based on above information. It means first of all you can see that we are given a current price is given which is 0 time period. So this is called P note rupees 35 per share. Then we have to determine to take decision buy or sell. So we have to determine what is the intrinsic value of share which we can denote by V0. So this is called intrinsic value which is also called true value of share. Formula is expected dividend upon required return minus growth. Expected dividend is given, growth is also given. So first we have to calculate what is the required return. So formula is CAPM model RF plus beta into RM minus RF. So RM minus RF, this is called market risk premium which is given to us. So RF is 12%. So plus beta is given, this is 1.6 and the risk premium is given, this is our 5%. So 1.6 into 5, 8 plus 12, so this is coming to 20%. So now we can determine easily what is the true value of share. Intrinsic value is also called the true value. Expected dividend you can see 3.25 is given and this is already expected. So cost of equity 20% minus growth rate is given, this is 10%. It means 3.25 upon 0.10. So value of share is rupees 32.50. So now you can easily take decision since our true value of share, this is 32.5. It is less than current market price of share which we have denoted as P note, this is rupees 35. It means share is overpriced. The current price आपका greater है, so we can say that share is overpriced. It means what is the decision for investor? Decision is investor should sell the share. उन्होंने ये पूछा है कि आपको डिसीजन लेना है, वी शुड बाय, होल्ड और सेल द शेयर. तो डिसीजन इज इन्वेस्टर शुड सेल द शेयर. So next we have question number first B part, this is related with म्यूचुअल फंड. तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने सभी अपने वीडियो लेक्चर्स में पहले ही कवर कर रखे हैं. तो क्वेश्चन पेपर आपका क्वाइट ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो जिन्होंने आपने डिटेल अपनी वीडियो देखनी है, यू कैन सी द वीडियोस एंड लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1B. तो इसमें देखिए आपको म्यूचुअल फंड की 3 स्कीम्स हैं. म्यूचुअल फंड एक्स, वाई एंड जेड. इनिशियल इन्वेस्टमेंट की गिवन, डिविडेंड रिसीव की गिवन आपको 31 मार्च. NAV ऑन 31 मार्च की गिवन. NAV आपको दिया पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड. इफेक्टिव यील्ड पर एनम की गिवन. होल्डिंग पीरियड इज आल्सो गिवन इन डेज एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द NAV एट द टाइम ऑफ परचेज, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग NAV एंड एज्यूम 365 डेज इन अ ईयर. तो अब देखिए आप एज्यूम कर लीजिए लेट ओपनिंग NAV ऑफ अवर म्यूचुअल फंड स्कीम. तो दिस इज अवर NAV डॉट NAV 0, ये आपकी ओपनिंग NAV है. एंड वंस वी नो ओपनिंग NAV देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज. तो कितने यूनिट्स आपने परचेज किए हैं तो उसका फार्मूला बन जाएगा. जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ये आपको मेंशन की है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको आप डिवाइड कर लीजिए NAV. तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आप शो कर सकते हैं I0 से. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज इफेक्टिव यील्ड ऑन म्यूचुअल फंड. उसका देखिए फार्मूला क्या है. इफेक्टिव यील्ड आपको शो करनी है पर एनम. तो आपके पास चॉइस है कि आप पर यूनिट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन या टोटल भी कर सकते हैं. फार्मूला है जितना डिविडेंड मिलेगा फर्स्ट पीरियड में प्लस NAV कितनी है आपकी आफ्टर 1 पीरियड माइनस ओपनिंग NAV कितनी है अपॉन ओपनिंग NAV, ये आपकी रिटर्न आ जाएगी. इनको कर लीजिए परसेंटेज 100
अब इसमें टाइम पीरियड आपको दिया है कि उसको बनाना है पर एनम। सो इनको टोटल गेस है 365, नीचे आ जाएंगे आपके मेच्योरिटी पीरियड जितने आपके गेस हैं स्कीम में। अब आपको रिटर्न दी है तो देखो अब आपके पास अब डिविडेंड जो है आपका, यदि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट दी है टोटल में, डिविडेंड भी आपको दिया है टोटल में, तो इट मीन्स अब आपकी जो क्लोजिंग एनएवी है, एनएवी वन, वो बन जाएगी जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इनको करते हैं एनएवी क्लोजिंग। तो स्टार्ट करते हैं नंबर बनने जो म्यूचुअल फंड स्कीम एक्स। तो उसमें देखिए अब आपको रिटर्न मेंशन की है, इफेक्टिव यील्ड है आपकी 19.345%, पुट करके वैल्यूज 19.345। डिविडेंड आपको मेंशन किया है, इस स्कीम में आपको टोटल मिल रहा है 10,000 डिविडेंड। अब आप देखो क्लोजिंग एनएवी कैसे निकालेंगे, पहले आप नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कीजिए। इन्वेस्टमेंट है 550, उसको डिवाइड करके हैं ओपनिंग एनएवी, वो मिसिंग है आपकी, ये बन जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्लोजिंग एनएवी, वो आपको दिया है 11.5, माइनस कर लीजिए ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 550, तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी। उसकी परसेंटेज है ऑन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 550, इनको करना है आपको 100 इंटू 365, और इसकी जो बेस है जिसे गिवन 120। तो अब करके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 19.345 इंटू 550, परसेंटेज आ जाएगी आपकी, तो जिसे कमिंग 5,50,000 इंटू 19.345% मीन्स 100 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इंटू 120 अपॉन 365, प्लस ये आपका अमाउंट 550 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लस, और ये 10,000 बन जाएगा नेगेटिव, प्लस 550 माइनस 10,000 इज इक्वल टू, ये रह जाएगा आपका 550 इंटू 11.5 अपॉन NAV। तो इसको सोल्व करके देखो हाउ मच इज दिस वन, तो दिस इज अवर 5,50,000 इंटू 19.345% इंटू 120 डिवाइडेड बाई 365, तो प्लस 5,40,000, तो दिस वन इज कमिंग 574,980 is equal to 5, this is 550,000 into 11.5, total is 63,25,000 अपॉन ओपनिंग एनएवी। अब आप ओपनिंग एनएवी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिस स्कीम में 63,25,000 डिवाइडेड बाय 574,980, so divided by 574,980, so this opening NAV is ₹11। ये आपको आंसर आ रहा है ₹11 NAV फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम एक्स। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड स्कीम वाई, इसमें भी आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, डिविडेंड रिसीव की गिवन, क्लोजिंग NAV गिवन, इफेक्टिव यील्ड की गिवन 22.59%, नंबर ऑफ डेज हैं आपके 100। तो लेटेस्ट राइट फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम वाई, तो इफेक्टिव यील्ड जिसे गिवन 22.59% is equal to dividend is given 6,000 and आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 420, this is divided by opening NAV, तो this will be number of units into closing NAV पर यूनिट आपको मेंशन किए हैं, this is 11 माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट 420 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 420 इंटू 100, ये परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज है इसमें टोटल 365 एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ दिस स्कीम इज 100। तो इसको भी करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी 4,20,000 इंटू 22.59% एंड दिस इज इंटू 100 डिवाइडेड बाई 365 प्लस 420 माइनस 6,000, तो दिस अमाउंट इज कमिंग, दिस इज 439,994। अब राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 4,40,000। Now this one is equal to 4,20,000 into 11. This is 46,20,000 divided by opening NAV. It means opening NAV we get for this scheme is 46,20,000 divided by 439,994. So 4620 divided by 439,994. So rounded figure, this NAV is coming rupees 10.50. So next we have mutual fund scheme Jagged. So here also investment is given 1 lakh but dividend is nil.
closing NAV 9.5, but here effective yield is negative minus 36.5%, holding period is 50 days. तो इट मीन्स फार्मूला आपका सेम है, रिटर्न है आपकी माइनस 36.5%, तो लेकर राइट माइनस 36.5% इज इक्वल टू डिविडेंड इस केस में आपका नील है और आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी 1 लाख, तो उसको डिवाइड कीजिए एनएवी से, जिस नंबर ऑफ यूनिट्स इनको क्लोजिंग एनएवी 9.5 माइनस इन्वेस्टमेंट इज ओवर 1 लाख अपॉन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख इंटू 100 इंटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज आर 50. सो हेयर आल्सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये बन जाएगा आपका 1 लाख इंटू 36.5%, तो इट मीन्स ये नेगेटिव आ रहा है आपका माइनस 36,500 इंटू दिस इज 50 अपॉन 365, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 9.5 इंटू 1 लाख 9,50,000 divided by NAV. It means and this amount is becoming 36,500 into 50 divided by 365. This is 5,000 negative plus 1 lakh. This is 95,000. Is equal to 9,50,000 upon opening NAV. So it means we get opening NAV of this scheme is 9,50,000 divided by 95,000. That is equal to rupees 10 per unit of mutual fund. So next we have question number first to C part. So this is a practical question. So question is the starting point of an organization is money and the end point of that organization is also money. So explain the statement to clearly understand the interface of a strategic management and financial policy. तो आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मनी. So let us see, answer will be like this. An organization needs capital, means money, to start its operations. For investment in fixed and current assets, it means money is required at the time of start of business. And the funds may be generated through equity, means owner funds, or debt, which is borrowed funds. So later on, when profit is earned through operations, so and it is paid as interest on debt and dividend to owners. तो जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, तो दिस इज पेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट एंड डिविडेंड टू ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, और इट इज रीपेड ऑन लिक्विडेशन. तो फाइनली आपने वही जो मनी आपने जनरेट की थी बिजनेस से उसको हम रीपे कर रहे हैं थ्रू इंटरेस्ट और डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. So therefore we can say that money is the starting point as well as end point of an organization. Next question we have is section A part. So this question is based on technical analysis and we have to calculate exponential moving average. So data given in this question is closing values of NSE Nifty from 2nd January to 11th January are given. इतनी फॉर डिफरेंट डेज निफ्टी की वैल्यू आपको मेंशन की है एंड वी हैव टू कैलकुलेट EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्यूरिंग अब पीरियड. प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी इज 21,500 एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज इज 0.062. इट मीन्स आप देखिए आप उनका फार्मूला क्या बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ करंट टाइम पीरियड मीन्स जो आपका प्रेजेंट डे है उसकी फार्मूला है जिसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ प्रीवियस डे प्लस एक्सपोनेंट आपको दिया है 0.062 एंड करंट प्राइस कितना है निफ्टी का PT माइनस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ प्रीवियस डे. तो अब देखिए फर्स्ट डे जो है 2nd जनवरी निफ्टी की वैल्यू है 21,742, तो ये हमने लिखा है PT और EMA आपको दे रखी है प्रीवियस डे की 21,500, तो इसका डिफरेंस आ गया है हमारा PT माइनस EMA की -1 विच इज दिस वन. उसको मल्टीप्लाई किया हमने फिर एक्सपोनेंट से विच इज दिस वैल्यू 0.062 इंटू दिस डिफरेंस, उसमें आपको प्लस करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर. सो 21,500 प्लस 15.004 दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ करंट डे. अब ये नेक्स्ट डे के लिए बन जाएगी आपकी प्रीवियस डे की मूविंग एवरेज. अगेन यू कैन अप्लाई सेम मेथड, इनका डिफरेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 0.062 से और इसमें प्लस लीजिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ प्रीवियस डे जिसे करंट डे मूविंग एवरेज है. अब नेक्स्ट टाइम ये बन जाएगी प्रीवियस डे की, इनका डिफरेंस आ गया है, मल्टीप्लाई किया 0.062 से नेगेटिव आ रहा है
इसको प्लस किया आपने 21,524 में, जिसे जिसमें सिमिलरली वी आर कंटिन्यूइंग। तो फिफ्थ डेट को भी आपका सेम है। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, प्रीवियस के इनका डिफरेंस है प्राइस में नेगेटिव है, मल्टीप्लाई किया 0.062 से विच इज 3.835 और इसमें प्लस किया आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रीवियस के। सिमिलरली फॉर 8th डे वी हैव कैलकुलेटेड, फॉर 9th डे, 10th डे, 11th एंड 12th डे। अब आपको इसका एनालिसिस करना है। यू कैन सी दैट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी पहले जो को राइज हो रही है फर्स्ट सेकंड 2 डेज में, उसके बाद अब ये फॉल कर रही है आपकी एवरी डे। एक इंडिकेट्स दैट मार्केट इज बियरिश, क्योंकि ईएमए आपकी फॉल कर रही है। इट मीन्स मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बियरिश फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो उस केस में एक्शन क्या होना चाहिए इन्वेस्टर का या ब्रोकर का? ऑन द बेसिस ऑफ ईएमए देन इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स कैन टेक टू शॉर्ट पोजीशन। तो आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। सो दिस विल बी अवर बेस्ट स्ट्रेटेजी इन दिस केस। So next question is second B part. So this question is related with forex topic. We have to determine price of GDR. So data given is so XY Limited company is planning to raise funds of $15 million. So this is the net of issue expense or flotation cost. It means company requires a net funds of $150 lakhs. And the flotation cost is 3% and we have to propose issue GDR. So we have to calculate what is the cost of GDR and number of GDRs to be issued. So we are given market price of share at the time of issue of GDR is ₹350, face value 100. 3 shares will underlie each GDR and shall be priced at 6% discount to market price. Expected exchange rate is given ₹84 per dollar and dividend expected to be paid 10% and with growth 8%. So let us see data given. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ग्रोस फंड्स रिक्वायर्ड। नेट फंड्स आपको चाहिए $150 लाख से और 3% आपकी लोकेशन कॉस्ट है। इसमें इसको डिवाइड कीजिए 97% से। ग्रोस फंड्स आर $154,63,918 से। अब आपको कैलकुलेट करना है इशू प्राइस पर GDR, पहले आएगा रुपीज़ में। तो आपने शेयर का प्राइस है 350, 3 शेयर आपके अंडरलाई करेंगे ईच GDR में और उसका प्राइस हमने रखा है 6% डिस्काउंट पर, एक में 94%। सो दिस इज ₹987 है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप डॉलर में। इशू प्राइस आ जाएगा पर GDR यानी $987 और एक्सचेंज रेट है 84, जिस इज $11.75 है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितने GDR आपको इशू करने हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ GDR को भी इशू ग्रोस फंड्स जो आपको रिक्वायरमेंट है डिवाइड कर दीजिए इशू प्राइस ऑफ GDR इन डॉलर। So this is 154,63,918 divided by 11.75. So number of GDRs are 13,16,078. आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं लैक्स में 13.161 लैक्स। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ GDR को XY कंपनी। तो कॉस्ट के लिए आपको चाहिए पहले नेट प्रोसीड्स आपको कितने मिलेंगी GDR की रुपीज़ में 987 है। 3% आपकी लोकेशन कॉस्ट है, माइनस कर दो 3%, ये रहेगा 97%, जैसे कि 957.39 अमाउंट आपका है रुपीज़ में। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर GDR। अब आप 100 का शेयर है 10% डिविडेंड है, 3 शेयर हम अंडरलाई कर रहे हैं GDR में। सो दिस विल बी 30 रुपीज़। ग्रोथ रेट आपको दी है डिविडेंड की 8%। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ GDR टू XY लिमिटेड। फार्मूला है एक्सपेक्टेड डिविडेंड गिवन अपॉन करंट इशू प्राइस ऑफ GDR प्लस ग्रोथ। एक्सपेक्टेड डिविडेंड है आपका 30, इशू प्राइस है रुपीज़ में 957.39 प्लस ग्रोथ रेट 8% विच इज 0.08 है। सो कॉस्ट ऑफ GDR इज कमिंग टू बी 11.134%। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन सेकंड सी पार्ट। सो दिस इज बेस्ड ऑन रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड इन ग्रो रिच म्यूचुअल फंड स्कीम एंड एसेट वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ मंथ गिवन एनुअलाइज्ड रिटर्न गिवन 16%, distribution made in the nature of income and capital gain per unit respectively 0.40 and 0.30. So you have to calculate the month and NAV of the mutual fund rounded off to 2 decimal. तो अब देखिए पहले फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं। एनुअल रिटर्न का फार्मूला है डिविडेंड की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम D1C1 प्लस क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV अपॉन ओपनिंग NAV, और ये सिर्फ आपकी 1 महीने की है। तो इनको 100 करेंगे परसेंटेज, उसको बनाना है अपने एनुअल रिटर्न को इंटू कर लीजिए 12 मंथ से। 12 अपॉन इसका मेच्योरिटी पीरियड है 1 मंथ।
तो पुट करके वैल्यू रिटर्न की है 16%, डिविडेंड है 0.40, कैपिटल गेन की इनकम है 30 पैसा, NAV मिसिंग है क्लोजिंग, ओपनिंग NAV 78.50 आपको मेंशन की है अपॉन ओपनिंग NAV इंटू 1200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो NAV 1 आ जाएगी 16 इंटू 78.5 डिवाइडेड बाई 1200 एंड प्लस 78.50 माइनस 0.4 plus 0.3 is 0.70. So in this way we get a closing NAV at the end of the month रुपीज़ 78.85। फिर आपने कमेंट देना है, कमेंट सिंपल है, NAV एक मंथ हैंगे है कि इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रही है बाय 78.85 माइनस ओपनिंग NAV की आपकी 78.50, इट मीन्स NAV एट मंथ हैंग हैज इंक्रीज बाय 35 पैसा। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, तो किसी रिलेटिविटी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन। So we are given data manufacturer has taken a floating interest rate loan of rupees 2 crores on 1st April 2023 and interest rate at the time of loan is 9% and interest will be paid every year on 31st March. But in the month of October, central bank releases of long projections about interest rates को आपको फ्यूचर के एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं 1 अक्टूबर को। So this borrower wants to hedge the risk using option cap arising out of expected rise in rate of interest. Since rate of interest are rising, so borrower wants to take our hedging, and for this purpose it has purchased our interest rate cap option. And when he wants to pay his interest cost at 9%, and objective is that interest cost is fixed at 9% per annum. So and for this purpose premium negotiated by both the parties is 0.80%। तो कैप का जो प्रीमियम आपको पे करना है तो किसी को भी पेड एट वंस ऑन 1 अक्टूबर एंड जिसे 0.8%, तो ये कैलकुलेट करके हम अमाउंट ऑफ लोन के ऊपर और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन किए हैं रिस्पेक्टिव डेट से ऊपर, तो आपको कैलकुलेट करनी है हाउ द सेटलमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द पर्सपेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। तो लेके से कैप ऑप्शन में कितनी कॉस्ट पड़ दी है हमें, तो आप देखिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन। अमाउंट को लोन है आपका रुपीज़ 2 करोड़ से 200 लाख से, कैप का जो रेट है स्ट्राइक रेट वो है 9%, हमारी जो रिक्वायरमेंट है 9% होनी चाहिए कॉस्ट। तो कैप का प्रीमियम पे कर दिया फिर लमसम में 1 अक्टूबर को, जिसे 200 लाख इंटू 0.8% 1,60,000। अब आप टेबल ड्रॉ कीजिए, ड्यू डेट्स है हमारी 31 मार्च 24, 5, 6, 7, 8, उस टाइम का इंटरेस्ट रेट आपको दिया है 9.5%, 11 या 9.25, 9 एंड 8.5%। तो आपने एक्चुअल में जो इंटरेस्ट पे करना है वो इस रेट के बेस पर हम पे करेंगे। तो ये हमने कैलकुलेट किया है 200 लाख इंटू 9.5%, रुपीज़ हमारे लैक्स में चल रहे हैं, तो वेरीफाई कीजिए 200 इंटू 9.5% के लिए 19 लैक्स। फिर आपने 11% पे किया है, 9.25%, 9% एंड 8.5%। अब स्ट्राइक रेट है हमारा 9%। तो कैप में ये बेनिफिट होता है जब आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, तो इसमें कैप की रिसीव होगी आपकी, या रिफंड हम कह सकते हैं 0.5% ऑफ 200 लैक्स, तो जिसे जो 1 लाख है। इस केस में 11 माइनस 9 2% आपको रिफंड मिल जाएगा ऑफ 200 लाख, जिसे 4 एंड हेयर इट इज 0.25% रिफंड ऑन 200 लैक्स, तो जिसे 0.250। कि जब आपका रेट स्ट्राइक रेट या उससे कम है फिर आपको वही एक्चुअल इंटरेस्ट पे करना है और कोई आपको कैप से रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपके आ गया इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आपने पे किया है 18, 18, 18 एंड 17। नाउ यू कैन सी बच्चे टोटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग दीज 5 ईयर्स, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके 5, तो ये टोटल बन रहा है आपका 89 और प्लस आपने कैप की फीस पे की थी लमसम में 1.60, तो टोटल कॉस्ट है आपकी 90.60। उसकी हमने कैलकुलेट किया है इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम, तो 90/60 उसकी परसेंटेज निकाली, 200 लाख का लोन है इनको 100 और ये 5 सालों की है, इसको डिवाइड किया हमने 1/5 ईयर, तो एवरेज कॉस्ट आ रही है आपकी 9.06%। नेक्स्ट टू फर्दर गेरास्टीन स्टेट वेदर का ऑप्शन इज एडवांटेजियस व्हेन कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट टू कॉलर ऑप्शन है। तो यदि आप कॉलर ऑप्शन लेते हैं तो कॉलर में ऑप्शन में क्या होता है कि हमने कैप को बाय करना है और फ्लोर ऑप्शन को हम सेल कर देते हैं। तो आप देखिए आपका अमाउंट को लोन सेम है, कॉलर का रेट है 9% की है स्ट्राइक रेट आपका, और जो कॉलर का प्रीमियम है तो हमने कैप की फ़ीस पे करनी है, फ्लोर इसमें हम
कैप जो होता है उसको बाय करके हैं ऑप्शन को कॉलर में, और जो आपका फ्लोर है उसको हम सेल कर रहे हैं। इसका प्रीमियम आपको रिसीव होगा, इसका पे करना है, तो नील हमारी जो नेट कॉस्ट है वो नील हो जाएगी प्रीमियम की। अब आप कैलकुलेट कीजिए कितना इंटरेस्ट आपको एक्चुअली में पे करना है। ड्यू डेट्स हैं आपकी, इंटरेस्ट रेट आपका सेम है, इंटरेस्ट की पेमेंट भी सेम है, कैप की रिसीट आपकी सेम है। जब आपका इंटरेस्ट 9 से ज़्यादा है तब आपको जो डिफरेंस है 0.5%, 2%, 0.25% ऑफ 200 लैक्स वो आपको रिसीव हो जाएगा। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, जो हमारा स्ट्राइक रेट है या उससे कम है, फिर आपको एक्चुअल इंटरेस्ट ही पे करने हैं। अच्छा, फ्लोर के केस में क्या होता है, हमने सेल किया फ्लोर, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू फ्लोर बायर। तो 8.5 में आपका देखो ये 9 से कम है, तो 0.5% हम पे करेंगे ऑन 200 लैक्स विच इज अवर गिस्मन 1। बाकी सब जगह जीरो आ जाएगा, कोई पेमेंट नहीं करनी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज मोर देन और इक्वल टू 9%। नाउ यू कैन सी इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना पे किया आपने, 19 माइनस 1 18, सभी में 18 आ गया है। तो टोटल इंटरेस्ट पे है 90, कॉलर का प्रीमियम इसमें नेट जीरो है, सो टोटल इज 90। नाउ यू कैन कैलकुलेट इफेक्टिव एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम 90.200 इंटू 100 इंटू 1/5 ईयर्स हैं आपके, नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके 5। तो ये हमने बना दिया एवरेज इंटरेस्ट को, दिस इज 9%। तो पहले देखो कैश में हमारी कॉस्ट आ रही थी 9.06%, नाउ दिस इज 9%। तो इट मीन्स कॉलर इज बेटर बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट इज पेज्ड एट 9% पर एनम। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इंटरेस्ट कॉस्ट को पेग करना चाहते हैं एट 9%। सो कॉलर इज बेटर ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट। तो दिस इज अवर स्ट्रेटजीज ऑफ ऑप्शन। This is also quite easy question. We have already covered in our video lectures as well as MCQ lectures. So let us see data given is the market receives some information about ABC Limited tie-up with a multinational company, and this has induced the market price to move up. If the information is false, price will probably fall dramatically. To protect from this, investor have both call and put option. So he purchased 1 3-month call with a strike price 45 rupees, 4 rupees 3 premium, and paid rupees 2 per share premium for 3 months put with a strike price 42। तो आपने कॉल भी बाई की है, पुट भी बाई की है, दोनों को एक्सरसाइज प्राइस आपका डिफरेंट है। तो लेके सर आई के डेटा आपको मेंशन किया है, जीरो टाइम पीरियड, ऑप्शन आपने ली है 3 मंथ्स की। इट मीन्स इन्वेस्टर परचेज सो बाई कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन। तो दिस इज गिवन टू अस, दिस इज 45 रुपीज़ 45 अमाउंट्स आपके हैं रुपीज़ में, एंड प्रीमियम इज गिवन फॉर कॉल ऑप्शन। तो दिस इज 3 रुपीज़। इसी तरीके से आपने बाई की है तो पुट ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट। राइट मिलता है सेल करने का शेयर को 42 रुपीज़, और कॉल में आपको राइट मिलता है बाई करने का, प्रीमियम दिया है आपको ऑफ पुट ऑप्शन जिस इज 2 रुपीज़। इसमें जो टोटल प्रीमियम आपने पे किया है, तो हम क्योंकि बाय कर रहे हैं ऑप्शन, जिस 3 + 2 5 रुपीज़। तो जब आप दोनों ऑप्शन को बाय करके हैं डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पर, तो जिस कॉम्बिनेशन का ट्रायंगल, तो आपको कैलकुलेट करने हैं। और नंबर ऑफ 100 शेयर्स हैं आपके कॉल और पुट पे, नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको मेंशन किए हैं, नंबर इक्वल टू 100। अब 3 पॉसिबिलिटीज आपको दिए हैं। नंबर 1, डिटरमिन इन्वेस्टर पोजीशन इफ टाई अप ऑफर बिट्स द प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड स्टॉक अप टू ₹44 इन 3 मंथ्स से। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन दी है कि जो प्राइस है आपका स्पॉट प्राइस आफ्टर 3 मंथ से, दी है 3 मंथ से, सो दिस बिकम्स टू ₹44। तो दिस इज ₹44। तो आप चेक कीजिए कॉल ऑप्शन में, तो कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका स्टॉक प्राइस है ST, तो दिस में 44 इज लेस देन exercise price of call, and this ST is more than exercise price of put। तो इसका मतलब है कि कॉल भी रिजेक्ट हो जाएगी, पुट भी रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट बोथ कॉल एंड पुट। तो व्हाट विल बी पे ऑफ टू इन्वेस्टर, मीन्स प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। 100 ऑप्शन हैं, तो देयर इज ए लॉस टू इन्वेस्टर ₹500। Then we have a second possibility to determine investor position if a tie-up offer program fails and the price of the stock falls to ₹34 in 3 months। अब जो स्टॉक प्राइस है आपका आफ्टर 3 मंथ्स, so it has fallen to ₹34।
तो इट मीन्स दिस इज 34 को आप देखेंगे नंबर 1 SP आपका कम है एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल से, तो इट मीन कॉल को रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट कॉल। बट दिस SP इज लेस दैन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट, तो इट मीन्स पुट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो पुट में आपको बेनिफिट होगा। सो बट विल बी पे ऑफ टू इन्वेस्टर, तो पुट में आपको राइट मिल जाएगा सेल करने का एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट, और स्पॉट मार्केट से बाई कीजिए माइनस प्रीमियम इनको नंबर ऑफ ऑप्शन से। तो आप सेल कर रहे हैं, एक्सरसाइज प्राइस है पुट का 42, 34 पर आप बाई करेंगे, प्रीमियम है आपका 5 रुपीज़ इंटू 100, दिस विल बी अवर प्रॉफिट, दिस इज ₹300 इज प्रॉफिट टू इन्वेस्टर। फिर आपको थर्ड पॉसिबिलिटी मेंशन की है, so support price after 3 months it is given but it investor position if stock price rises up to 46 in 3 months, अब प्राइस हो गया आपका ₹46 से, इट मीन जो SP है आपका किसी ग्रेटर अगेन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल, कॉल के एक्सरसाइज प्राइस से ग्रेटर है तो आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, बट SP इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट, इट मीन्स पुट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। तो व्हाट विल बी पे ऑफ टू इन्वेस्टर, तो पे ऑफ विल बी इक्वल टू, वो आप स्पॉट पे सेल कीजिए, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल पर हम बाय करेंगे माइनस प्रीमियम इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो आपने सेल करना है 46 के ऊपर, तो कॉल का प्राइस है आपका 45, प्रीमियम है आपका 5 रुपीज़ 200, प्रॉफिट 1 रुपी है, तो प्रीमियम में मोर, लेकिन इसमें भी आपको लॉस हो रहा है ₹400, दिस इज लॉस टू इन्वेस्टर। So next we have question number 4 to B part. So this is related with merger. So in this case data given is PQ Limited plans to acquire RS Limited. Relevant information of two firms prior to merger announcement are market price of share is given ₹150 for PQ and RS, and number of outstanding shares are given 20 lakh and 10 lakh. यानी कि given merger is expected to generate gain which have a present value of ₹300 lakhs. So this is also called synergy benefit. The exchange ratio agreed is 0.5. You are required to calculate the true cost of merger from the point of view of PQ Limited. तो आपको ट्रू कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो पहले डेटा ड्रॉ करके आपको 2 कंपनीज मेंशन की हैं, PQ लिमिटेड हैं, RS लिमिटेड हैं, अमाउंट्स आपके हैं रुपीज़ को लैक्स में शो कर रखे हैं, तो मार्केट प्राइस है ये पर शेयर है रुपीज़ पे, नंबर ऑफ शेयर्स आपको मेंशन किए हैं, तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ दिस PQ एंड RS ये 150, नंबर ऑफ शेयर्स फिर आपको मेंशन किए हैं जिसे जो 20 लाख एंड 10 लाख। तो अब देखते हैं पहले फार्मूला क्या है आपका, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर एंड जिसे टू एक्वायरिंग कंपनी विच इज PQ लिमिटेड। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ मर्ज टू फर्म आफ्टर मर्जर, इट मीन्स वट इज वैल्यू ऑफ PQ एंड RS। तो उसमें देखिए अब आपको कितना प्रपोर्शनल राइट जो है थ्रू नंबर ऑफ शेयर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं RS को, तो उसका फार्मूला है एक्सचेंज रेशो इनटू नंबर ऑफ RS। अब टोटल शेयर्स बन जाएंगे नंबर ऑफ PQ प्लस जितने शेयर आपने इशू किए हैं एक्सचेंज रेशो इनटू नंबर ऑफ RS एंड माइनस वैल्यू ऑफ RS। तो ये होता है कि प्रपोर्शनल वैल्यू आपने मर्ज को फर्म में ट्रांसफ़र कर दी है टारगेट फर्म को, और ये इसकी वैल्यू है। तो कैलकुलेट करते हैं पहले, सबसे पहले देखिए बाकी वैल्यू ऑफ PQ, वैल्यू है आपकी नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो नंबर है आपके लैक्स में ले लेते हैं 100 इंटू 20 लाख शेयर्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी ₹2000 लैक्स। देन वी हैव वैल्यू ऑफ RS, अगेन नंबर इनटू मार्केट प्राइस, इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं अब आपके 10 लाख, मार्केट प्राइस है 50 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आर 10, तो दिस वैल्यू इज ₹500 lakhs। इंडिविजुअल वैल्यूज हैं एंड वट वैल्यू ऑफ PQ प्लस RS आफ्टर मर्जर। अब इन दोनों में ऐड कर लीजिए सिनर्जी बेनिफिट और गेन, उसकी वैल्यू आपको मेंशन की है, तो जिसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी फ्यूचर में मर्जर से बेनिफिट्स होंगे जिसे ₹300 lakhs। इट मीन्स नाउ वी गेट वट इज वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म, वैल्यू ऑफ PQ एंड RS। उसका बेसिक फार्मूला है वैल्यू ऑफ PQ प्लस वैल्यू ऑफ RS प्लस सिनर्जी बेनिफिट और सिनर्जी गेन।
तो मीन इनको ऐड कीजिए, टोटली कमिंग ₹2800 लैक्स। तो अप्लाई करके हैं इस फार्मूले में। सो व्हाट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, दिस इज टू P2 कंपनी जो एक्वायरिंग कंपनी है। तो वैल्यू ऑफ मर्ज की फर्म है 2800 लैक्स इनको एक्सचेंज रेशो आपको दी है 0.5 और उसके नंबर ऑफ शेयर हैं 10। टोटल शेयर बन जाएंगे कि P2 जो है 20 प्लस 0.5 इंटू 10 माइनस वैल्यू ऑफ आर एस इज 500। तो यू कैन सी दिस इज 2800 इंटू ये बन गया आपके 5 लाख शेयर अपॉन 25 माइनस 500। तो दिस इज ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर 2800 डिवाइडेड बाय 5 minus 500. So this is rupees 60 lakhs is our answer, true cost of merger. So next we have question number 5 a part. So this is based on Markov portfolio theory. So data given is investor has decided to invest ₹1 lakh in the shares of X Limited and Y Limited. Desired returns from the shares of the two companies along with their probabilities are given. Probability given, return of X Limited, Y Limited is given. You are required to calculate the risk and return of investment in individual shares. तो आपने दोनों शेयर का पहले रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो उसका इनको मैंने टेबल पहले ड्रॉ कर लिया है, आपको मेंशन किया है। प्रोबेबिलिटी है, रिटर्न है एक्स की। तो रिटर्न को मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी से, तो वो आ जाएगी आपकी आर एस इंटू पी आई, टोटल लीजिए 8.5। तो इट मीन्स फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड है, सेकंड है वाई लिमिटेड। तो वट इज देयर रिटर्न, उनकी रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज में। बेसिक फार्मूला है रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी एंड इससे समेशन। रिटर्न ऑफ एक्स की कमिंग 8.25%। फिर आपको कैलकुलेट करना है रिस्क, उसके लिए हमें चाहिए वेरिएशन आर एक्स माइनस कर वो मीन आर एक्स। ये इसका कॉलम बन गया है -5 माइनस 8.5, 10 माइनस 8.5, 15 माइनस 8.5। रिस्क के लिए अब आपको चाहिए आर एक्स माइनस मीन आर एक्स का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इसका स्क्वायर कीजिए इंटू 0.2, 1.5 का स्क्वायर इंटू 0.5, 6.5 स्क्वायर इंटू 0.3 एंड दिस से समेशन है। नाउ व्हाट इज रिस्क, तो रिस्क हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। उसका बेसिक फार्मूला है रिटर्न माइनस मीन रिटर्न, इसका कीजिए स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी और उसका आप कर लीजिए स्क्वायर रूट। तो दिस इज योर रिस्क एंड दिस इज योर समेशन। इट मीन्स वी हैव 50.25। अब आपका रिस्क आ जाएगा, उसका आप कर लीजिए अंडर रूट। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज सिक्योरिटी। So you can see this is coming to be 50.25 is root 7.0889%. Similarly for y limited देखो रिटर्न आपको मेंशन किया है 15.25 माइनस 10, उसको मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, सो वी आर गेटिंग 12.5%। देन व्हाट इज रिस्क, उसके लिए आपको चाहिए वेरिएशन आर वाई माइनस मीन आर वाई। ये आ गया 15 माइनस 12.5, 25 माइनस 12.5 माइनस 10 माइनस 12.5, ये नेगेटिव ऐड हो गए। इसका स्क्वायर किया इनटू प्रोबेबिलिटी टोटल इज दिस। इट मीन्स रिस्क इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो दिस वन इज कमिंग 15 पॉइंट। ये आपका नंबर 1 आंसर है। सेकंड ईयर आस्किंग कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ गिल्ड टू शेयर्स विच ए पोर्टफोलियो ऑफ गिल्ड शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब आपने इन दोनों शेयर का एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें वेट है आपका इक्वल। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑफ पोर्टफोलियो। आरपी है रिटर्न इनटू वेट। तो आप देखेंगे रिटर्न है आपकी 8.5, वेट आपका इक्वल है 1/2 बन जाएगा। तो जिससे ये 8.5 इंटू 1/2 प्लस सेकंड की रिटर्न है 12.5 इंटू 1/2। तो जिससे ये 8.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 2। सो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जिसे 21/2 10.5%। ये आपकी रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की। अब आप रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो का, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो दैट इज इक्वल टू रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस रिस्क ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी वाई इंटू वेट ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इंटू वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई। तो अब देखते हैं कोवेरिएंस भी चाहिए था आपको, बट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। इसका फार्मूला है आर एक्स माइनस मीन आर एक्स
इंटू आर वाई माइनस मीन आर वाई इंटू प्रोबेबिलिटी। उसकी कैलकुलेशन भी हमने कर दिया है। एक लास्ट कॉलम में आर एक्स माइनस मीन आर एक्स, आर वाई माइनस मीन आर वाई इंटू पी आई। तो आर एक्स माइनस मीन आर एक्स ये गिवन एंड आर वाई माइनस मीन आर वाई ये गिवन। तो 13.5 इंटू 2.5 इंटू 0.2 ये आ गया नेगेटिव में आपका, यानी कि 1.5 इंटू 12.5 इंटू 0.5 पॉजिटिव, 6.5 इंटू 22.5 ये है नेगेटिव। तो समेशन इज नेगेटिव। सो कोवेरियंस इज समेशन है आपका -41.25। अब इसको बुक कर रखे हैं तो आपका पोर्टफोलियो रिस्क आ जाएगा। तो अभी ये वेरियंस आ रहा है, तो वेरियंस ऑफ एक्स है आपका विदाउट स्क्वायर रूट 50.25, वेक है आपका 1/2 स्क्वायर। सेकंड का वेरियंस है 231.25 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स को वेरियंस है आपका नेगेटिव 41.25। तो इसमें 1/4 देखेंगे आप इंटू WS/WY, तो ये भी आपका बन जाएगा 1/4। तो 1/4 आपका कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज 50.25 प्लस 231.25 एंड माइनस दिस इज 2 टाइम्स 41.25 82.5 divided by 4। So this is 50.25 plus 231.25 minus 82.5, so divided by 4 49.75। ये भी आपका है वेरियंस। सो बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इसका कर लीजिए अंडर रूट 49.75 एक्स स्क्वायर रूट 7.053 ये रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। नेक्स्ट we have third point, they are asking find out the proportion of each of the above shares to formula है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अब देखो आपने बनाना है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, और उसके लिए आपको देखना है कि व्हाट शुड बी वेट ऑफ 2 शेयर्स इन पोर्टफोलियो। उसका फॉर्मूला ये है वेट ऑफ एक्स इक्वल टू वेरियंस ऑफ वाई माइनस को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स को वेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो इट मीन्स एक्स के लिए हम लेते हैं वाई का वेरियंस और वाई के लिए लेते हैं एक्स का। तो नाउ लेट अस पुट वेरियंस ऑफ वाई देखो आपके पास है टोटल 231.25 माइनस को वेरियंस है आपका माइनस में 41.25 अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स 50.25 वेरियंस ऑफ वाई 231.25 माइनस 2 टाइम को वेरियंस 41.25। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल बिकमिंग 231.25 प्लस 41.25 272.5 और जिसे 2 टाइम्स 41.25 और ये भी आपका माइनस है प्लस हो जाएगा। सो प्लस 231.25 प्लस 50.25, so total is 364। So this we get to weight of x in a portfolio 272.5 divided by 364, this is 0.7486, तो राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.75। तो इसमें x का वेट है 0.75, तो y का वेट आ जाएगा आपका 1 माइनस वेट ऑफ x, दिस इज 1 माइनस 0.75, तो दिस इज 0.25। तो इतने सब आपका मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बन गया है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। सो इन विच वेट ऑफ एक्स शुड बी अवर 75% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड वेट ऑफ वाई शुड बी 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। सो दिस इज अवर इक्विटी वैल्यूएशन विद मल्टी ग्रोथ मॉडल एज वेल एज ए कैपिटल मॉडल। So in this data given is XY Limited paid a dividend ₹3 for current year. Dividend is expected to grow 30% for next 5 years and 15% per annum thereafter. Return on 182 treasury bills is 12% per annum, which is called risk-free return. And market return is expected to be 16% and with variance of 24%. The covariance of XY return with that of market is 30%. You are required to calculate the required return of इक्विटी। तो पहले हमें कैपिटल मॉडल अप्लाई करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज रिक्वायर्ड रिटर्न।
रिक्वायर्ड रिकर्व मीन्स किसी काग के ई फार्मूला है आपका बेसिकली आर एफ प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ. सो फॉर दिस पर्पज फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट बीटा. क्योंकि बीटा का जो उसने कोवेरिएंस आपको दिया है, सो फार्मूला विल बी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई विद मार्केट एंड डिवाइडेड बाय मार्केट वेरिएंस. तो ये हमारा बेसिक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें बीटा का. कोवेरिएंस इज गिवन 30% and variance of market is 24%. So बीटा is coming 1.25. अब आप अप्लाई कर सकते हैं. सो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी के ई, जिसे जो आर एफ रिस्क फ्री रिटर्न है आपकी क्रेडिबिलिटी रिटर्न 12%, बीटा इज 1.25 और मार्केट की रिटर्न आपको मेंशन की है 16%. तो 16 माइनस 12, तो 4 इंटू 1.25 जिसे 5 प्लस 12 17% आपका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी. अब आपको कैलकुलेट करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर. तो उसके लिए आप देखिए वैल्यू शेयर दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स विच आर एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स एट के ई. तो करंट डिविडेंड देखो आपको मेंशन किया है डी नोट जिसे गिवन ₹3. अब इसमें ग्रोथ चल रही है आपकी फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए ग्रोथ है आपकी अप टू 5 ईयर, जिसी का अब नॉर्मल ग्रोथ 30% एंड फ्रॉम 6 टू इन्फिनिटी ग्रोथ हो जाएगी आपकी नॉर्मल जिसे गिवन हो 15%. तो ये आपको मेंशन किया है. तो उसके लिए अब एक टेबल ड्रॉ करके हैं व्हाट आर फ्यूचर डिविडेंड्स. तो ईयर 1 2 3 4 एंड 5 अगेन 5 वैल्यू इन 5th ईयर. Generally apply PV factor. Let us write dividends. इनको 3 में पहले आपको ऐड करनी है 30% ग्रोथ अप टू 5 ईयर. तो 3 प्लस 30% 3.9. तो प्लस 30% 5.07. तो प्लस 30% 6.59. प्लस 30% 8.57. प्लस 30% 11.139. फिर आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम 6 टू इन्फिनिटी. उसके लिए चाहिए 6 ईयर का डिविडेंड. अब इसमें ग्रोथ ऐड कर लीजिए 15%. तो फार्मूला ये बन जाएगा 11.139 इंटू 1.15 अपॉन के ही है आपकी 17% माइनस 0.15 जो ग्रोथ है. उसकी देखो वैल्यू आ जाएगी आपकी 11.139 प्लस 15% डिवाइडेड बाई 2% जिस इज 640.5. हाउ यू कैन अप्लाई पीवी फैक्टर 17%. तो ये हमें ऑलरेडी मेंशन किए हैं क्वेश्चन में 0.855 0.731 0.624 यानी कि जो 0.534 एंड 0.436. This is also 5th year 0.436. So 456. Now you can multiply dividends with the PV factor. So you will get total value of a share. So this is the intrinsic value in 0 time period. तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस वैल्यू है 312 रुपीज़ 312.88. दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर. तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं ₹300 करके. तो राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा 313. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट. सो दिस इज रिलेटेड विद अवर ऑप्टिमम रीप्लेसमेंट साइकिल ऑफ एन एसेट. So here data given is a machine used on a production line must be replaced at least every 4 years. Costs equal to current the machine equal to its age are given. So it is given that so if age of machine is 0 year, purchase price is given, and for first year maintenance cost is about 18,000. For second year this is 20 plus 3 23. तो मीन्स आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिए हैं फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर. स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो गिवन. And the machine will be replaced with the same cost. Revenue is unaffected, and we have to ignore inflation and tax. We have to determine optimum replacement cycle of asset. Cost to capital is given 15% and PV factors are given. तो आपको डिटरमिन करना है whether machine should be held for 1 year, 2 year, 3 year और 4 year से.
तो आपने सभी पीरियड्स के लिए कैलकुलेट करनी है उसकी हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो स्टार्ट करके हैं, देखिए वो डाटा बनाया है हमने। तो रिप्लेसमेंट पीरियड है, देखिए आप मशीन को रिप्लेस करके आपके 1 ईयर। तो उस केस में डिफरेंट ईयर्स हैं आपके 0 एंड 1। तो आपके क्या क्या कैश आउटफ्लोस होंगे। तो 0 में आप परचेज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख, ये आउटफ्लो है हमारा। फर्स्ट ईयर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आउटफ्लो होगा 18,000। और देखिए आप मशीन को सेल कर रहे हैं, आपको 1 ईयर स्क्रैप मिलेगी, ये हमारा इनफ्लो बन जाएगा। तो इतनी ये टोटल कैश आउटफ्लोस हैं आपके। उसकी कैलकुलेट कीजिए प्राइसिंग वैल्यू फॉर 0 ईयर किसी मंथ, और फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर है 0.8696। तो मल्टीप्लाई करके आपकी प्राइसिंग वैल्यू आ गई है। और कैश आउटफ्लो 1,15,650 को, और स्क्रैप की प्राइसिंग वैल्यू ये हमारा इनफ्लो है को हमने माइनस कर दिया है। नेट आउटफ्लो आ गया आपका 85,216। अब ये 1 साल की हमारी एनपीवी है, इसको कन्वर्ट करना है हमने इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में। तो उसका नाम है ईएसी, उसका फार्मूला होता है टोटल जो भी प्राइसिंग वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया आप प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी फैक्टर लेना है आपने, देखिएगा पर कुमुलेटिव फैक्टर। तो ये 1 साल का फैक्टर है, उससे डिवाइड करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड केस में देखिए आप एसेट को रिप्लेस करके आपके 2 ईयर। तो 0 पीरियड में हमारी कॉस्ट है 1 लाख की, फर्स्ट ईयर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सेकंड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 23, और स्क्रैप रिलाइज होगी देखिए अब 2 साल के बाद सेल करके 23। तो इसकी प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर्स है, और मल्टीप्लाई कीजिए प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल प्राइसिंग वैल्यू बन रही है आपकी, देखिए आल्सो का एनपीवी 115,652.80। अब ये 2 साल की प्राइसिंग वैल्यू है, तो इसको हमने लेना है 2 साल का जो पीवी फैक्टर है उसका टोटल 0.8696 एंड 0.7561। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन है, देखिए आप मशीन को रिप्लेस करके आफ्टर 3 ईयर से। तो 0 में परचेज होगी, फर्स्ट ईयर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, सेकंड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, थर्ड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और थर्ड ईयर के एंड में आपकी ऐसे सेल हो जाएगी। सो वी रियलाइज स्क्रैप। तो कैश आउटफ्लोस हैं 1,18,000, 23, 28,000, और स्क्रैप आपको मिल रही है 12,000। ये पीवी फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ये 0 पीरियड का है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये दोनों सेम है आपके जिसमें। और ये इसकी प्राइसिंग वैल्यू आ गई है, टोटल एनपीवी बन गई 143,563.10। उसको डिवाइड कीजिए आप 3 साल का जो एनपी फैक्टर है आपका, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया है। तो ये बन जाएगा 2.2832। सो वी गेट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज 62,878। फिर आता है आपका देखिए अब ऐसे को रखते हैं 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, और उसके बाद ही इसको रिप्लेस करते हैं। तो 0 ईयर में परचेज की कॉस्ट आ गई, फर्स्ट ईयर की रिपेयर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर की रिपेयर, और फोर्थ ईयर में स्क्रैप आपको रियलाइज हो जाएगी। ये कैश आउटफ्लोस हैं 1,18,000, 23, 28, 34, स्क्रैप मिलेगी आपको 6,000 की, ये इनफ्लो बन जाएगा। पीवी फैक्टर्स हैं आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, प्राइसिंग वैल्यू आ गई, टोटल एनपीवी आ गई। इसको भी डिवाइड करना है आपने, 4 साल का एनपी फैक्टर लेना है आपने। तो ये जो 4 साल के फैक्टर्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया है 2.855। तो ये हमारी आ गई इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। तो जिस ईयर में ये हमारी मिनिमाइज हो जाएगी, तो ये मिनिमम हो रही है 4th ईयर में। तो इसका मतलब है ऐसे को आपने रिप्लेस करना है आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो 4 ईयर हमारा जो है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है। लेकिन ऐसे शुड बी रिप्लेस आफ्टर एवरी 4 ईयर्स टू मिनिमाइज एनुअल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट। Next we have question number 6, B part. So this is related with our merger. So in this case data given is equity share of XYZ Limited are currently being traded at ₹34 per share in the market. XYZ has total 10 lakh equity shares outstanding number, and promoters equity holding in the company is 30%. Then ABC Limited wishes to acquire XYZ Limited because of likely synergies. The estimated price value of this synergy is rupees 100 lakhs. Further, ABC feels that management of XYZ Limited has been overpaid with better motivation, lower salary and fewer perks for top management will lead to saving of 5 lakh per annum, and top management with their families are promoters of XYZ Limited. क्विक मिस फर्दर आपको मेंशन किया है XYZ के जो प्रमोटर्स हैं तो उनको हम सैलरी रिड्यूस करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, उससे 5 लाख की सेविंग होगी पर एनम, एंड प्रेजेंट वैल्यू गिव सेविंग विल ऐड 25 लाख इन वैल्यू टू द एक्विजिशन, और उससे भी हमें बेनिफिट होगा मर्जर का 25 लाख। एंड कैन इट गिवन फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन है ABC की, अर्निंग पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन। So we have to determine number 1 maximum price per equity share which ABC can offer to pay to XYZ Limited.
तो क्या क्या बनाते हैं, पहले देखो आपको ABC और XYZ कंपनीज हैं। तो ABC ने एक्वायर करना है बिजनेस XYZ कंपनी का। तो ABC की अर्निंग पर शेयर आपको मेंशन की है, जिसे जो ₹5 पर शेयर। देन नंबर ऑफ शेयर्स आपको मेंशन किए हैं, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर ABC, जिसे जो 15 लाख। एंड फर्दर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन, लेट अस से MPS, ये आपको मेंशन किया है ₹30। तो ये कोई एक्वायरिंग कंपनी का डाटा है। इसी तरीके से XYZ का मेंशन किया है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ XYZ इज ₹34 पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके 10 लाख हैं। EPS हमें मेंशन नहीं की। फर्दर मेंशन किया है इस 10 लाख में से प्रमोटर की होल्डिंग है 30%। प्रमोटर से होल्डिंग इज गिवन। अब आपको ये भी मेंशन किया है, कोई ABC कंपनी जब एक्वायर कर रही है XYZ को, उसकी जो सेविंग होगी सिनर्जी बेनिफिट, तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी, तो दिस इज गिवन ₹100 lakhs। तो फर्दर आपको एक और भी बेनिफिट होगा सिनर्जी का, कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की XYZ की, विच इज हेल्ड बाय प्रमोटर से, तो उसकी हम सेविंग हो जाएगी, उनको हम रेम्युनरेशन रिड्यूस कर देंगे। तो वट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स विद लो रेम्युनरेशन टू मैनेजमेंट, एंड दिस मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड, तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय प्रमोटर से, विच हुज होल्डिंग इज 30%। वी कैन से दैट मैनेजमेंट और प्रमोटर से। तो उसकी सेविंग की वैल्यू भी आपको दी है 25 लाख। तो इट मीन्स टोटल सेविंग हो रही है आपको ड्यू टू मर्जर फॉर ABC कंपनी, जिस इज ₹125 lakhs। तो फर्स्ट दे आर आस्किंग वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस पर शेयर विच ABC कैन ऑफर टू XYZ। तो पहले डिटरमिन करते हैं व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस पेएबल बाय ABC टू XYZ। तो मैक्सिमम प्राइस हम उसको पे कर सकते हैं, एक तो जितना उसका मार्केट में प्राइस है ₹34, प्लस जो हमें सिनर्जी सा बेनिफिट हो रहा है फ्यूचर में, उसकी कितनी वैल्यू है पर शेयर है। इट मीन्स मैक्सिमम प्राइस पेएबल विल बी इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस दिस इज ऑफ XYZ प्लस व्हाट इज अवर सिनर्जी बेनिफिट पर शेयर। यू कैन सी 34 को उसका मार्केट प्राइस है। सिनर्जी बेनिफिट देखो कितना होगा, हमें टोटल सिनर्जी से बेनिफिट होगा 125 लाख। तो 125 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए, जितने उसके शेयर्स हैं, उसके शेयर हैं 10, तो मैक्सिमम हम उसको पे कर सकते हैं पर शेयर के बेस पर ₹12.50। तो इतनी मैक्सिमम प्राइस पेएबल है आपका 34 प्लस 12.50, दिस विल बी ₹46.50। ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम प्राइस पेएबल। सेकंड मैंने पूछा है कैलकुलेट मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच मैनेजमेंट ऑफ XYZ विल बी विलिंग टू ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब देखिए जो XYZ की प्रमोटर्स हैं, जो अपनी मैनेजमेंट है, देखिए वो अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है छोड़ रहे हैं, उसके बदले में उनको मिनिमम प्राइस कितना मिलना चाहिए। तो मिनिमम प्राइस है उनका भी जो उनका प्राइस चल रहा है, प्लस जो उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, क्योंकि अब प्रमोटर जो हैं वो आर का मैनेजमेंट आल्सो, तो उनको जो रेम्युनरेशन मिलना था फ्यूचर में वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वो भी आपने उसका कंसीडर करना है। तो लेट अस सी दिस वन। तो सेकंड पॉइंट भी है टू कैलकुलेट मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच मैनेजमेंट ऑफ XYZ विल बी विलिंग टू ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो सेकंड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज मिनिमम प्राइस विच इज एक्सेप्टेबल टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट इज हेल्ड बाय प्रमोटर्स ऑफ XYZ। तो देखो मिनिमम प्राइस बन जाएगा जो उनका करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है वो उनको मिलना चाहिए। सो इट मीन्स वी विल कंसीडर करंट मार्केट प्राइस, प्लस आपको ये मेंशन किया है अब जो प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका रेम्युनरेशन रिड्यूस हो जाएगा, उससे जो लॉस होगा उनका फ्यूचर में तो वो भी उनको रिकवर करना है। तो प्लस किसी का जो अपॉर्चुनिटी लॉस, तो अपॉर्चुनिटी लॉस है आपका इन रिडक्शन ऑफ, तो प्लस आपके करने हैं अपॉर्चुनिटी लॉस इन रिडक्शन ऑफ फ्यूचर रेम्युनरेशन ऑन पर शेयर बेसिस। लेट अस सी हाउ मच इज दिस वन। तो करंट मार्केट प्राइस देखो आपको दिया है 34,
अब प्लस जो अपॉर्चुनिटी लॉस, जो एक्वायरिंग कंपनी की सेविंग है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फ्यूचर एमुलेशन, उसकी वैल्यू है 25 लाख रुपीज़। तो इट मीन्स 25 लाख रुपीज़ टोटल है आपका। अब इसको कर दीजिए कन्वर्ट आप पर शेयर में। तो अब देखिए प्रमोटर से मैनेजमेंट के पास कितने परसेंट शेयर हैं, 10 लाख में से 30%, विच इज 3 लाख। उसको 3 लाख से डिवाइड कर लीजिए। तो इट मीन्स ये इनका अपॉर्चुनिटी लॉस आ जाएगा पर शेयर, जो उनको फ्यूचर में होगा, तो वो भी उन्होंने रिकवर करना है अपना। इट मीन्स मिनिमम प्राइस एक्सेप्टेबल 34 प्लस 25/3। So this amount is coming 25 divided by 3 is 8.33. So it means the minimum price acceptable is 34 plus 42.33. तो ये आ जाएगा उनका मिनिमम प्राइस जो उनको एक्सेप्टेबल।